This call is So, now being recorded. in the last lecture, we have completed about parasitism and predator. Now we'll start with commensalism. Now, in commensalism, there is interaction in which one species benefits and the other is neither. जो कि हमने टेबल में भी देखा था एक इस इंटरेक्शन में वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड and the other one is not harmed and not benefited, मतलब न्यूट्रल जीरो. नाउ एग्जांपल्स जो बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं वो है ऑर्चिड का. An orchid growing in an epiphyte on a mango branch and brancals growing on the back of whale benefits, while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. ये दोनों एग्जांपल भी आपको इस टॉपिक के लिए याद होनी चाहिए, खासकर ऑर्चिड वाला. एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एन एपीफाइट ऑफ अ मैंगो ब्रांच and barnacles growing on the back of whale benefit, while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. Now the cattle irrigate. जब भी खेत में प्लविंग होती है तो वो बर्ड्स आ जाते हैं ना, that are cattle irrigates and grazing cattle in the close association. A sight you like the most to catch if you live in farmed rural areas is a classic example of commensalism. The irrigates always forage close to where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficulty for irrigates to find and catch. जब भी कैटल्स कहीं पे ग्रेस करते हैं तो दे पुल आउट द ग्रासेस जिससे इंसेक्ट्स वगैरह ऊपर की तरफ आ जाते हैं और एरगेट्स जो हैं उनके डिनर का काम हो जाता है. तो ये एक एग्जांपल है, कैटल को कोई बेनिफिट नहीं मिला बट एरगेट्स का काम हो गया. ओके. As they move, stir up and flush out insects from vegetation and otherwise might be difficult for ergots to find and catch. Now, another example of commensalism is interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clown fish that lives among them. Sea anemone प्लेटीहेल्मिन्थ का एक एग्जांपल है. तो उसके टेंटेकल्स के पास क्लोन फिश रहती है जो सबसे छोटी फिश है. That lives among them. The fish gets protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. ओके, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सो commensalism के एग्जांपल आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ विल स्टडी म्यूचुअलिज्म. commensalism में था एक का प्रॉफिट, दूसरे का ना लॉस ना प्रॉफिट. म्यूचुअलिज्म में दोनों का प्रॉफिट. दिस इंटरैक्शन confirms confers benefits on both the interaction of species. Lichens represents an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, mycorrhiza are associations between fungi and roots of higher plants. The fungi help the plant in absorption of essential nutrients from the soil, while the plants in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. Okay, now next, जैसे इसमें एग्जांपल ये याद रखना कि फंगी जो है प्लांट्स के इसेंशियल के लिए माइकोरिजा का जो एसोसिएशन होता है तो वो न्यूट्रिशन बढ़ा देता है सॉइल से एंगल्फ करने के लिए. और प्लांट्स जो है उनको, क्योंकि फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो फंगस को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज म्यूचुअलिज्म. एक सिमिलर एग्जांपल जैसे ऊपर राइजेंस का दिया था लाइकेंस का. नाउ द मोस्ट spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant and animal relations. Plant need the help of animal for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the service that plants expect from them. Plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators.
and juicy and nutritious fruits for seed dispersers. But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plants animal interactions often involve co-evolution of the mutualist. हम लोगों को पता है पॉलिनेटर्स बर्ड्स इंसेक्ट्स होते हैं बट उनमें से सभी के सभी पॉलिनेट नहीं करते कुछ दे टेक द न्यूट्रिशन बट डज नॉट हैव एनी रोल इन ट्रांसपोर्टिंग द पोलन तो they have talked about cheaters for these terms. Now you can see why plant animal interactions often involve co-evolution of the mutualist. That is, the evolution of flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig, example याद रखना है. In many species of fig, there is tight one-to-one relationship between the pollinator species of wasp. wasp के pollinator species के साथ वन टू वन रिलेशंस रहते हैं जैसे इट मीन्स दैट अ फिक्स स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड only by its partner wasp species and no other species. The female wasp used the fruit not only as an oviposition egg laying site but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. The wasp pollinate the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for developing wasp larvae. Okay, तो वो पॉलिनेशन जब लेने आते हैं तो वहीं पे उनका फूड रहता है फिग का जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है ये पे एग्स होते हैं और जब वो पॉलिनेट करने आते हैं तो उनको न्यूट्रिशन के फॉर्म में पॉलिनेशन भी हो जाता है तो ये एक एग्जांपल है फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वैस्प लेइंग एग्स इन द फिग फ्रूट ये वैस्प जो है फिग फ्रूट के अंदर स्टाइल स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट कर रहा है एंड इससे उनको फ्रूट्स भी मिल जा रहा है तो म्यूचुअलिज्म बिकॉज इंसेक्ट्स नीड नेक्टर. Now orchid shows a bewildering diversity of flora, pollinator insect bees and bumblebees to ensure guarantee pollination of it. Not all orchids offer rewards. The Mediterranean orchid Orphis employs sexual deceit to get pollinated done by the species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female. यहाँ पे द मेडिटेरियन ऑर्फिस या मेडिटेरियन ऑर्चिड का एग्जांपल दिया है वहाँ पे वो इट रिसेम्बल्स लाइक फीमेल इंसेक्ट वो थोड़ा सा फीमेल इंसेक्ट की तरह अपने पेटल्स को शेप करता है जिससे बी को लगता है कि इट इज फीमेल इंसेक्ट एंड इट ट्राइज टू कॉपुलेट बट इस चक्कर में क्या हो जाता है पॉलिनेशन हो जाता है बट देन ही अंडरस्टैंड कि नहीं ये फ्लावर का पेटल है. Okay, one petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of its bee in size, color, and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudocopulates with the flower, and during this process, pollen is dusted from the flower. When the same bee pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. In the if the female bee's color pattern changes even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. यहाँ पे देखो बी पॉलिनेटर टू वो उसको फीमेल इंसेक्ट के जैसे लगती है डेड ब्राउनिश कलर सब्सटेंस और इंसेक्ट मेल इंसेक्ट को लगता है कि इट इज फीमेल सो इट ट्राई टू सूडो कॉपुलेट बट उसी टाइम पे पोलन डिग्रेड करके दे ट्राई टू हैव क्रॉस पॉलिनेशन. ओके okay, that's how this chapter ends. Now
We'll have some resemblance. We'll have some question solution of the same. Organism and population. क्या हो गया? Okay, let's start some questions of the same chapter. अभी हमने जस्ट यही चैप्टर कंप्लीट किया, so we'll have questions some. Now
First question is, asymptote is a logistic asymptote in a logistic growth curve is obtained when k is equal to n, k will be more than n, k will be less than n, and where the value of r approaches zero. अब हमें पता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में असिम्प्टोमेट या स्टेबिलिटी तब आती है जब k की वैल्यू n के पैरेलल होती है, जब n रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो फिर k इज इक्वल टू n आएगा फर्स्ट का आंसर। नाउ सेकंड, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो वीवी पैरिटी इज बिलोंग टू। अब इसमें न्यूमेटोफोर्स का मतलब बोला है, न्यूमेटोफोर्स का मतलब होता है स्मॉल निगेटिव जियोट्रॉपिकल वर्टिकल रूट्स जो वीवी पैरिटी यूज करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। तो ये किसके अंदर दिखता है? हेलोफाइट्स के अंदर दिखता है। ओके, हेलोफाइट्स। नाउ थर्ड इज presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending upon the height can be seen best in tropical rainforest, grassland, temperate forest and tropical savannas. Now इसमें से हमें पता है वेल अरेंज वर्टिकल लेयर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखते हैं, ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट में अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए ट्रॉपिकल साउनास तो वैसे भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ माइकोराइजा जो अभी हमने देखा, माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है फंगस का, जो फंगस जो है सॉइल से न्यूट्रिशन देता है एंड प्लांट्स उसको इन रिटर्न ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट देता है। तो माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज करेक्ट फॉर are selected species? Large number of progeny with small size, large number of progeny with large size, small number of progeny with small size and small number of progeny with large size। और हमें पता है आर सिलेक्टेड जो कॉलोनीज होती हैं वो खुद के लिए कॉलोनाइज करने के लिए कैपेबल रहती हैं, फूड और अदर रिसोर्स को यूज करने के लिए। तो ऐसे कॉलोनीज में किसके ऐसी कॉलोनीज लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाती हैं विद स्मॉल साइज। ओके, तो आर रिलेटेड स्पीशीज में फर्स्ट ऑप्शन आता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज। इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरैक्शन एंड माइनस साइन टू detrimental and O sign to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refers to, जिसमें एक को प्रॉफिट एक को लॉस हो रहा है ऐसा बताया गया है। तो हमें पता है ऐसा होता है पैरासिटिज म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस रहते हैं, एमेंसिलिज्म में एक प्लस एक माइनस, कमेंसलिज्म में एक प्लस एक जीरो एंड पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस होता है। तो हमें पैरासिटिज्म पता है जिसके अंदर एक को प्रॉफिट एक को लॉस होता है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सकल्जन वॉज stated by चार्ल्स डार्विन, जीएफ गाउसे, मैकऑर्थर एंड वेलहॉर्स्ट एंड पल। हमें पता है गाउसे ने प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन दिया था, तो सेवेंथ का अपने आप ही क्या आ जाएगा? बी, गाउसे का प्रिंसिपल था। ओके, नाउ it is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal because small animals have lower O2 requirement. The efficiency of muscles in large animal is less than that of in small animals. It is easier to carry a small body weight. And fourth, smaller animals have higher metabolic rate. अब देखो, स्मॉलर एनिमल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, स्मॉलर बॉडी टू वॉल्यूम रेशो होता है और उनका मेटाबॉलिक रेट्स हायर होता है एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स। देयरफॉर इट इज मच इजियर फॉर स्मॉल एनिमल्स टू मूव अपहिल देन large animals. Main focus on this is due to metabolism efficiency of muscles in large animals is less than that in small animals because body is to वेट रेशो में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से मसल्स की एफिशिएंसी मैटर करती है। नाइन्थ, व्हेन डस, ये इसके क्वेश्चन बहुत कर लिए। 11th, in which of the following interactions both
पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। कंपटीशन के अंदर हमने देखा है दोनों माइनस माइनस कब हो जाते हैं कंपटीशन के अंदर। एन एसोसिएशन ऑफ individuals of different species living in same habitat and having same functional interactions is ecosystem, population, ecological niche and biotic community। अब अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो बायोटिक कम्युनिटी जो है ये असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट एंड फंक्शनल। तो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बोला है तो कम्युनिटी से ही होगा ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट तो बायोटिक कम्युनिटी। नोट 13 में देखो एक डायग्राम दिया है। द फॉलोइंग ग्राफ्स डिपिक्ट्स द चेंजेस इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी। ए का स्टार्टिंग में इंक्रीज था देन सडन फॉल हुआ है, जबकि बी का कांस्टेंट था एंड देन इंक्रीज हुआ है। Herbivorous in grassy field. A possible reason of these changes is that population A produce more offsprings than population B. Population A consume the members of population B. Both plants populations in this habitat decrease. For population B competed more successfully for food than population A। अब इसके अंदर दो पॉपुलेशन है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टाइम पीरियड के बाद बी का अचानक से बढ़ गया और ए का कम हो गया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आएगा मोर ऑफस्प्रिंग वाला। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बी से ए की ऑफस्प्रिंग्स में कमी आई है। सेकेंड पॉपुलेशन है कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी नॉट पॉसिबल। नाउ बोथ प्लांट्स पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो थर्ड भी नहीं आएगा। देन पॉपुलेशन बी कॉम्पीट मोर सक्सेस। गॉसिस का एक्सकल्जन कंपटीशन प्रिंसिपल यूज किया। एक ने बेटर सरवाइव किया जिसके कारण एक से उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। तो डी ऑप्शन। जस्ट अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू escape the heat for the duration of hot summers, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold regions be uh, नॉर्दर्न रीजन्स मूव टू कहाँ पे जाते हैं ये लोग? वेस्टर्न घाट, मेघालय, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड कोलाडियो। तो अपने को पता है साइबेरियन क्रेन्स क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान भरतपुर के साइड माइग्रेट करते हैं। 15 besides paddy fields cyanobacteria are also found inside vegetative part of इक्विस्टम, साइलोटम, पाइनस एंड साइकस। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया साइकस के साथ दिखता है इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ साइकस। नाउ कोरलाइड रूट्स जो साइकस के होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ या तो फिर कोई भी और साइनोबैक्टीरिया बट वो म्यूचुअलिस्टिक उसमें रहते हैं। नाउ a biologist studied the population of rats in barns. He found that the average mortality was 250. Average natality, sorry, birth was 250. Average mortality was 240. Immigration was 20 and emigration was 30. Net increase कितना हो जाएगा? पहले birth 250 plus emigration, सॉरी इमिग्रेशन कितना हो जाएगा? 270 एंड मॉर्टेलिटी कितनी हुई है? 240 एंड बाहर गए हैं 30 मतलब 270। तो नेट पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो जाएगा? 270 माइनस 270 जीरो। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो डू फोकस। नाउ द एज पिरामिड विद broad base indicates high percentage of old individual, low percentage of young individual, a stable population और the high percentage of young individual। अभी हमने देखा था नीचे का ब्रॉड बेस हो तो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है। प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। इंडियन पॉपुलेशन जैसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्शन? कौन सा पैरासाइट का एडेप्शन नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी,
एंड लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। तो कौन सा पैरासाइट का एडेप्शन नहीं है? पैरासाइट का एडेप्शन डेवलपमेंट ऑफ एडिसिव ऑर्गन होता है ताकि वो अट्रैक्ट करे। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ये होता है क्योंकि वो सक करते रहते हैं ब्लड्स। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर कोई पैरासिटिज्म खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है प्रीडेटर के अंदर, देन ये प्रॉपर्टी पैरासाइट्स के अडेप्शन की नहीं है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन ये भी लॉस कर सकता है क्योंकि उसको सिर्फ हुक और सकर्स चाहिए रहते हैं फॉर पैरासाइट। बट जो मेनली अडेप्शंस लेते हैं वो लोग, वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडिसिव ऑर्गन एंड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। ओके, कस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ, कस्केटा एक्टोपैरासिटिज्म का है, ब्लड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म का है, प्रीडेशन या एंडोपैरासाइट। तो हमें पता है कस्केटा जो एक्टोपैरासाइट बाहर की तरफ पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। कौन से हेज प्लांट्स के ऊपर ये पैरासाइट करता है? ओके, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल, एल्पाइन। ये वाला स्किप हो चुका है, डोंट वरी, ये वाला सिलेबस में नहीं है नीट के करंटली, एल्पाइंस वाला। 30 क्वेश्चन देखते हैं। कंट्री विथ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टुक मेजर्स टू रिड्यूस इट। द पॉपुलेशन बिलो shows age pyramid of population A and B 20 years apart. Select the interpretation among them. दो पॉपुलेशन है, एक में मेल फीमेल बराबर है और एक में डेवलपिंग में है, एज इन ईयर्स। इसमें सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है, फिर रिप्रोडक्टिव है और सबसे कम वो, तो ए एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है। ओके, कंपेयर में बी में और ज़्यादा 0 to 9 है कंपेयर टू डायग्राम है। ए में 12 तक है, यहाँ पे 15 तक, तो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कौन से उसके अंदर दिख रहा है डायग्राम 1 और 2 में से? ए इज मोर रिसेंट एंड शो स्लाइट रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, जबकि बी के अंदर ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है। तो अपन देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बी इज अर्लियर पिरामिड एंड शो स्टेबलाइज ग्रोथ रेट। ओके, स्टेबलाइज ग्रोथ रेट। सेकेंड, बी इज मोर रिसेंट, रिसेंट नहीं है, बी में काफी ज्यादा एडेप्शन हुई है पॉपुलेशन की, तो जो रिसेंट होगा उसके अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ए इज अर्लियर पिरामिड एंड नो चेंज एज ऑकर्ड इन द ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट में फर्क हुआ है क्योंकि ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले अभी ये एक ही पॉपुलेशन के अलग टाइम पे, तो बी अर्लियर था और ए रिसेंट वाला है। Now, A is more recent and shows slight reduction in growth rate. Obviously, पहले ग्रोथ रेट 15 था, अब 12 पहुंच गया। तो ये डायग्राम फर्स्ट था। सेकंड वाला जो ए वाला है वो डायग्राम रिसेंट का है जिसके अंदर पॉपुलेशन फॉल हुआ है। पहले बी का इसमें हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा पॉपुलेशन पुराना है कौन सा नया। दोनों एक ही कंट्री के पॉपुलेशन है ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखो इसमें पहले 15 था पॉपुलेशन 0 to 9 में, ए में देखो वो 12 के आसपास पहुंच गया है। तो मतलब ये फर्स्ट डायग्राम होगा बी वाला, और ए वाला सेकेंड पॉपुलेशन है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन आई है। तो इन्होंने पूछा कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इन्होंने सही बोला है कि ए जो है वो रिसेंट है एंड बी अर्लियर है। ए रिसेंट है जिसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ फॉल हुई शुरू हुई है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार आप घर पे ये चैप्टर रीड कर लेना। वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट। थैंक यू।